اور جب انسان اس روحانی احساس میں پوری طرح ڈوب جاتا ہے تب اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اب اس کے رب کی رحمت کا آئینہ بن گیا ہے، کیونکہ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ ہر اس احساس کے لیے جیتا ہے جو اسے اس کے رب کے قریب لے جائے۔ اب اس کی نیت بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی چاہتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اب وہ دنیا کی چیزوں کو پانے کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ اپنے رب کی رجا پانے کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اور جب انسان کی چاہت بدل جائے تو اس کی قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ اب اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں سکون ملنے لگتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی اداس کو مسکرانا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالنا، یہ سب اس کے لیے عبادت بن جاتے ہیں۔ اب وہ کسی کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سہارا بننا چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا رب اسے اسی طرح سنبھالتا ہے جیسے وہ دوسروں کو سنبھالتا ہے۔ اب وہ اپنے لفظوں کا بھی خیال رکھتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کسی کا دل توڑ بھی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے وہ ہر بات سوچ کر کرتا ہے تاکہ اس کے لفظ کسی کے لیے سکون بنے، درد نہیں۔ اب وہ اپنے اندر جھانکنا سیکھ جاتا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور انہیں سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نہیں گنتا بلکہ اپنی کمیوں کو سدھارتا ہے، اور یہی سوچ اسے ایک بہتر انسان بنا دیتی ہے۔ اب اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اصلی جیت دوسروں کو ہرانے میں نہیں بلکہ خود کو سدھارنے میں ہے۔ اب وہ اپنے رب سے ہر وقت جڑا رہتا ہے، چاہے وہ بھیڑ میں ہو یا تنہائی میں، کیونکہ اس کا دل اب ہر وقت اللہ کہتا ہے، اور یہی جڑاؤ اسے ہر حال میں سکون دیتا ہے۔ اب وہ اپنے غموں کو چھپاتا نہیں لیکن انہیں اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر بے خوف ہو کر آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا رب اس کے ہر غم کو سمجھتا ہے۔ اب اسے انتظار سے بھی پیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر انتظار کے پیچھے ایک خوبصورت انجام چھپا ہوتا ہے۔ اب وہ جلد بازی نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہر چیز اپنے صحیح وقت پر ہی ملتی ہے، اور یہی صبر اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اب وہ اپنے رب سے صرف مانگتا نہیں بلکہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے اسے خوشی ملے یا غم، کیونکہ اسے سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ دونوں ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اب وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور یہی ڈر اور محبت کا سنتلن اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب وہ کسی سے جلتا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہر کسی کو اس کا حصہ ملا ہے، اور جو اس کا ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ اب اس کی نظریں دوسروں کی نعمتوں پر نہیں بلکہ اپنی نعمتوں پر ہوتی ہیں، اور یہی شکر اس کے دل کو اور امیر بنا دیتا ہے۔ اب وہ ہر حال میں خوش رہنا سیکھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی خوشی اب کسی چیز پر نہیں بلکہ اس کے رب پر ٹکی ہوتی ہے۔ اور جب خوشی کا سہارا اتنا مضبوط ہو تو پھر کوئی غم اسے توڑ نہیں سکتا۔ اب وہ ہر دن کو ایسے جیتا ہے جیسے یہ ایک نئی نعمت ہو، اور ہر رات کو ایسے بتاتا ہے جیسے یہ ایک سکون بھری پناہ ہو۔ اب اسے دنیا کی بھیڑ میں کھونے کا ڈر نہیں، کیونکہ وہ اپنے رب میں خود کو پا چکا ہوتا ہے، اور جب انسان خود کو پا لے تو اسے پھر کسی اور چیز کی تلاش نہیں رہتی۔ اس لیے اگر تم بھی اس راستے پر ہو تو خود کو سنبھالے رکھو، کیونکہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کا ہر قدم تمہیں تمہارے رب کے قریب لے جا رہا ہے۔ اور ایک دن جب تم اس سفر کو پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ ہر درد، ہر انتظار، ہر آنسو تمہیں اسی سکون تک لانے کے لیے تھا جو آج تمہارے دل میں ہے، اور تب تمہاری روح خود کہے گی، یا اللہ، تیری ہر بات میں رحمت تھی، میں ہی ہر بار سمجھ نہیں پایا۔ اور یہی احساس تمہیں ہمیشہ کے لیے سکون دے دے گا، کیونکہ جسے اس کا رب مل جائے اسے پھر کچھ اور پانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جب انسان اس احساس کو اپنی روح میں اتنی گہرائی تک اتار لیتا ہے
کہ اس کا ہر خیال، ہر ارادہ اور ہر قدم اپنے رب کی طرف مڑ جاتا ہے، تب اس کی زندگی صرف گزرتی نہیں بلکہ چمکنے لگتی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے حالات کا قیدی نہیں رہتا بلکہ اپنے یقین کا مالک بن جاتا ہے۔ اب اسے یہ فرق سمجھ آ جاتا ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے اور جو اس کے لیے بہتر ہے، دونوں ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور جب یہ سمجھ دل میں اتر جائے تو انسان ہر فیصلے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اب وہ اپنی ہر خواہش کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دے، اور اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو میرے دل سے اس کی چاہت ہی نکال دے۔ اور یہی دعا اس کے دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اب اسے کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے لکھا ہے وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے خود اس کے پاس آئے گا۔ اب وہ لوگوں کے بدلنے سے پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اس کا رب کبھی نہیں بدلتا، اور یہی یقین اس کے دل کو ہر وقت مضبوط بنائے رکھتا ہے۔ اب وہ اپنی کمیوں سے بھاگتا نہیں بلکہ انہیں پہچانتا ہے اور انہیں سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ اصلی خوبصورتی چہرے میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں ہوتی ہے۔ اب وہ ہر انسان کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا ہے، چاہے سامنے والا اس کے ساتھ کیسا بھی ہو، کیونکہ اس کا ویوہار اب لوگوں کے حساب سے نہیں بلکہ اس کے رب کی خوشی کے حساب سے ہوتا ہے، اور یہی سوچ اسے ایک الگ ہی مقام پر لے جاتی ہے۔ اب اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر رشتہ، ہر ملاقات، ہر جدائی سب ایک مقصد کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی اسے کچھ سکھانے آتا ہے، کوئی اسے کچھ دے کر چلا جاتا ہے، اور کوئی اسے اس کے رب کے اور قریب لے جاتا ہے۔ اب وہ کسی کے جانے پر ٹوٹتا نہیں بلکہ مسکرا کر کہتا ہے، شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، اور یہی سوچ اس کے دل کو ہر درد سے بچا لیتی ہے۔ اب اسے اکیلا پن ڈراتا نہیں، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ تنہائی میں ہی اس کا رب سب سے قریب ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی تنہائی کو بھی سکون بنا لیتا ہے۔ وہ اس خاموشی میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور وہی خاموشی اس کے دل کا سکون بن جاتی ہے۔ اب اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ زندگی کی اصلی خوشی کسی چیز کو پانے میں نہیں بلکہ اپنے رب کو پانے میں ہے، اور جب انسان کو اس کا رب مل جائے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب وہ ہر دن کو ایک موقع سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا، اپنے رب کے اور قریب جانے کا، اور ہر رات کو ایک موقع سمجھتا ہے اپنے دن کا حساب کرنے کا۔ اب وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے، کیا آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا؟ اور یہی سوال اسے ہر دن بہتر بناتا ہے۔ اب وہ اپنے رب سے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے جو کسی مشکل میں ہے۔ اس کی دعائیں اب سیمت نہیں رہتی، وہ ہر دل کے لیے سکون مانگتا ہے، ہر آنکھ کے لیے خوشی مانگتا ہے، اور یہی سوچ اس کی روح کو اور بھی اونچا کر دیتی ہے۔ اب اسے ہر چیز میں اپنے رب کی نشانی نظر آتی ہے، ایک چھوٹے سے پھول میں، ایک ہلکی سی ہوا میں، ایک معصوم سی مسکان میں، ہر چیز اسے اپنے رب کی یاد دلاتی ہے، اور یہی احساس اسے ہر پل خوش رکھتا ہے۔ اب وہ اپنے غموں سے بھاگتا نہیں بلکہ انہیں اپنا کر اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر بے خوف ہو کر آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے تو پھر کوئی ڈر اسے ڈرا نہیں سکتا۔ اس لیے اگر تم بھی اس راستے پر ہو تو خود کو سنبھالے رکھو، کیونکہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کا انجام بہت خوبصورت ہے۔ اور ایک دن جب تم اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو تمہیں ہر درد میں رحمت نظر آئے گی، ہر انتظار میں حکمت نظر آئے گی، اور ہر مشکل میں ایک چھپی ہوئی آسانی نظر آئے گی۔ اور تب تم دل سے کہو گے، یا اللہ، تو نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، میں ہی کبھی کبھی تجھ سے دور ہو گیا تھا۔ اور یہی احساس تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے سکون دے دے گا، کیونکہ جسے اس کا رب مل جائے اسے پھر کچھ اور پانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جب انسان اس احساس کو اپنی روح کی گہرائیوں میں بسا کر جینے لگتا ہے
तब उसकी हर सांस में एक ऐसी मिठास घुल जाती है जो हर दर्द को भी रहमत बना देती है, क्योंकि अब वो सिर्फ हालात को नहीं देखता बल्कि हर हालात के पीछे छुपी हिकमत को महसूस करता है। अब अगर उसे देर मिलती है तो वो परेशान नहीं होता बल्कि मुस्कुराकर कहता है शायद अभी वक्त नहीं आया। और अगर उसे कुछ जल्दी मिल जाए तो वो घमंड नहीं करता बल्कि अपने रब का शुक्र अदा करता है। अब उसकी चाल में एक सुकून होता है, उसकी आवाज़ में एक नरमी, उसकी नज़र में एक सादगी, क्योंकि उसका दिल अब दुनिया की भागदौड़ से निकलकर अपने रब की याद में ठहर चुका होता है। अब वो हर सुबह उठकर सिर्फ दिन शुरू नहीं करता बल्कि एक नई नेमत को महसूस करता है। वो सूरज की पहली किरण को देखकर अपने रब का शुक्र अदा करता है और रात की खामोशी में अपने रब से अपने दिल की बातें करता है। अब उसकी दुआएं भी बदल जाती हैं। वो ये नहीं कहता मुझे वो दे जो मैं चाहता हूँ, बल्कि वो कहता है मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर है। और यही दुआ उसकी ज़िंदगी में बरकत बन जाती है। अब वो अपने रब से नाराज़ नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब कभी उसके साथ गलत नहीं कर सकता। अब वो हर दर्द को भी एक तोहफ़ा समझता है, क्योंकि हर दर्द उसे कुछ सिखा कर जाता है। हर आंसू उसके दिल को और साफ करता है, हर इंतज़ार उसे सब्र सिखाता है और हर ठोकर उसे संभलना सिखाती है। अब वो अपने सफ़र से प्यार करने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत ये सफ़र है। अब वो अपने रब के फ़ैसलों पर सवाल नहीं करता बल्कि हर फ़ैसले को दिल से कबूल करता है, और यही कबूलियत उसके दिल को सुकून देती है। अब उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे अपने रब का साथ मिल चुका होता है। और जब इंसान को ये साथ मिल जाए तो फिर दुनिया की हर कमी पूरी लगती है। अब वो दूसरों की खुशियों में भी खुश होना सीख जाता है, क्योंकि उसका दिल अब तंग नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो चुका होता है। अब वो हर किसी के लिए अच्छा चाहता है, और यही सोच उसे हर किसी के दिल के करीब ले जाती है। अब वो अपने अतीत से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जो बीत गया वो भी उसके लिए ज़रूरी था, और जो आने वाला है वो भी उसके लिए बेहतर होगा। अब उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर होता है, और यही भरोसा उसे हर डर से आज़ाद कर देता है। अब वो अपने गमों को छुपाने की कोशिश नहीं करता बल्कि उन्हें अपने रब के हवाले कर देता है, और फिर बेखौफ होकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसकी हर परेशानी को आसान कर देगा। अब वो हर दिन को ऐसे जीता है जैसे ये उसके लिए एक नई शुरुआत हो, और हर रात को ऐसे बिताता है जैसे ये उसके लिए एक सुकून भरी पनाह हो। अब उसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। उसका रब हमेशा उसके साथ था, बस वो खुद ही उससे दूर हो गया था। और जब ये एहसास दिल में बस जाए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब वो हर हाल में खुश रहना सीख जाता है, क्योंकि उसकी खुशी अब किसी चीज़ पर नहीं बल्कि उसके रब पर टिकी होती है। और जब खुशी का सहारा इतना मजबूत हो तो फिर कोई गम उसे तोड़ नहीं सकता। इसलिए अगर तुम भी इस रास्ते पर हो तो खुद को संभाले रखो, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इसका हर कदम तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जा रहा है। और एक दिन जब तुम अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें हर दर्द में रहमत नज़र आएगी, हर इंतज़ार में हिकमत नज़र आएगी, और हर मुश्किल में एक छुपी हुई आसानी नज़र आएगी। और तब तुम्हारा दिल खुद कहेगा, या अल्लाह, तेरी हर बात में भलाई थी, मैं ही हर बार समझ नहीं पाया। और यही एहसास तुम्हारी रूह को हमेशा के लिए सुकून दे देगा, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी एहसास को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बना लेता है, तब उसका हर दिन एक नई शुरुआत और हर लम्हा एक नई रहमत बन जाता है, क्योंकि अब वो हालात के हिसाब से नहीं जीता बल्कि अपने यकीन के सहारे जीता है। अब अगर ज़िंदगी उसे किसी मोड़ पर रोक दे तो वो बेचैन नहीं होता बल्कि ठहर कर सोचता है,
शायद मेरे रब ने यहीं रुकने में भलाई रखी है, और अगर रास्ते अचानक बदल जाएं तो वो घबराता नहीं बल्कि मुस्कुराकर कहता है, मेरा रब मुझे बेहतर रास्ते पर ले जा रहा है। अब उसकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि यकीन भी होता है, और यही यकीन उसके हर कदम को मजबूत बनाता है। अब वो हर उस चीज़ को छोड़ना सीख जाता है जो उसे उसके रब से दूर करती है, और हर उस चीज़ को अपनाता है जो उसे उसके रब के करीब लाती है। अब उसका दिल साफ हो जाता है, न उसमें किसी के लिए नफरत रहती है, न किसी से जलन, बस एक सच्ची मोहब्बत और एक गहरी शांति। अब वो हर इंसान के लिए अच्छा सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब दिलों के इरादों को देखता है, और जब इंसान का इरादा साफ हो तो उसकी राह भी आसान हो जाती है। अब वो अपनी हर परेशानी को अपने रब के हवाले कर देता है और फिर बिना डर के आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब उसे कभी गिरने नहीं देगा। अब उसे दुनिया की भीड़ में खोने का डर नहीं, क्योंकि वो अपने रब के साथ खुद को पा चुका होता है, और जब इंसान खुद को पा ले तो फिर उसे किसी और चीज़ की तलाश नहीं रहती। अब वो अपने हर दिन को एक मौका समझता है, अपने दिल को और साफ करने का, अपने रब के और करीब जाने का, और हर रात को एक आईना समझता है जिसमें वो अपने पूरे दिन को देखता है और खुद से पूछता है, क्या आज मैंने अपने रब को खुश किया? और यही सवाल उसे हर दिन बेहतर बनाता है। अब वो अपनी गलतियों से डरता नहीं बल्कि उन्हें पहचान कर सुधारता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उन्हें सुधारना उसकी असली खूबसूरती। अब वो हर छोटी खुशी में भी शुक्र अदा करता है, एक सुकून भरी सांस, एक सच्ची मुस्कान, एक अच्छा लम्हा, ये सब उसके लिए बड़ी नेमत बन जाते हैं, और यही शुक्र उसकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देता है। अब वो अपने रब से सिर्फ मांगता नहीं बल्कि हर हाल में उसका शुक्र अदा करता है, चाहे उसे खुशी मिले या कोई इम्तिहान, क्योंकि उसे यकीन होता है कि दोनों ही उसके लिए बेहतर हैं। अब उसे इंतज़ार से भी मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि हर इंतज़ार के पीछे एक खूबसूरत अंजाम छुपा होता है। अब वो जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि हर चीज़ अपने सही वक्त पर ही मिलती है, और यही सब्र उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब वो अपने अतीत को याद करके दुखी नहीं होता, बल्कि हर बीती हुई बात से कुछ सीख लेता है और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने में लग जाता है। अब उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर होता है, और यही भरोसा उसे हर डर से आज़ाद कर देता है। अब वो अकेले होने से डरता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका रब हमेशा उसके साथ है, और जब ये एहसास दिल में उतर जाए तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता। अब वो हर लम्हे को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक तोहफा है, और वो इस तोहफे को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ख़ास मुकाम पर ले जाती है, जहाँ न कोई डर होता है, न कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाए तो फिर उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस एहसास को अपनी रूह की गहराइयों में उतार कर जीने लगता है, तब उसकी ज़िंदगी एक ऐसी किताब बन जाती है जिसमें हर पन्ना उसके रब की रहमत से लिखा होता है, क्योंकि अब वो अपने हालात को किस्मत का बोझ नहीं समझता, बल्कि अपने रब की तरफ से आई एक रहमत समझता है। अब अगर उसके रास्ते में कांटे भी आएं तो वो उन्हें देखकर रुकता नहीं, बल्कि सब्र के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हर कांटे के बाद फूल भी खिलते हैं। अब वो हर मुश्किल को अपने खिलाफ नहीं मानता, बल्कि उसे अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानने का मौका समझता है, और यही सोच उसे हर हाल में मजबूत बनाए रखती है। अब उसकी आंखों में शिकायत नहीं होती,
बल्कि शुक्र होता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि जो कुछ उसके पास है वो भी बहुत है, और जो नहीं है शायद उसमें कोई भलाई छुपी है। अब वो अपने रब के फैसलों पर सवाल नहीं करता, बल्कि हर फैसले को दिल से कबूल करता है, और यही कबूलियत उसके दिल को सुकून देती है। अब वो अपने हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करता है और हर रात को शुक्र के साथ ख़त्म करता है, क्योंकि उसे पता है कि हर दिन एक मौका है और हर रात एक सुकून। अब वो अपने अंदर झांकना सीख जाता है, अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। वो दूसरों की गलतियों को नहीं गिनता, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने में लगा रहता है, और यही कोशिश उसे एक बेहतर इंसान बना देती है। अब वो हर इंसान के लिए अच्छा सोचता है, चाहे सामने वाला उसके साथ कैसा भी हो, क्योंकि उसका दिल अब नफरत से खाली हो चुका होता है। उसमें सिर्फ दुआएं होती हैं और हर किसी के लिए भलाई की ख्वाहिश। अब वो अपने गमों को छुपाता नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कमज़ोरी भी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें अपने रब के हवाले कर देता है और फिर बेखौफ होकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब उसे संभाल लेगा। अब उसे अकेलापन डराता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। उसका रब हर पल उसके साथ था, बस वो खुद ही उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। और जब ये एहसास दिल में उतर जाए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब वो हर छोटी छोटी चीज़ में भी खुशी ढूंढ लेता है। एक हल्की सी मुस्कान, एक सुकून भरी हवा, एक अच्छा लम्हा, ये सब उसके लिए बड़ी नेमत बन जाते हैं, और यही एहसास उसे हर पल खुश रखता है। अब वो अपने रब से सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि हर हाल में उसका शुक्र अदा करता है, चाहे उसे खुशी मिले या कोई इम्तिहान, क्योंकि उसे यकीन होता है कि दोनों ही उसके लिए बेहतर हैं। अब वो अपने अतीत से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जो बीत गया वो भी उसके लिए ज़रूरी था, और जो आने वाला है वो भी उसके लिए बेहतर होगा। अब उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर होता है, और यही भरोसा उसे हर डर से आज़ाद कर देता है। अब वो हर लम्हे को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक तोहफा है, और वो इस तोहफे को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ ना कोई डर होता है, ना कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस एहसास को अपनी रूह की तहों में उतार कर जीने लगता है, तब उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक सफ़र नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी दास्तान बन जाती है जिसमें हर दर्द भी दुआ होता है और हर खुशी भी इम्तिहान, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि ज़िंदगी का हर रंग उसके रब की तरफ से है। अब वो कड़वे लम्हों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें सब्र से जीता है, और मीठे लम्हों में खोता नहीं, बल्कि उनमें शुक्र ढूंढता है, क्योंकि उसे पता है कि हर हाल एक अमानत है। अब वो अपने दिल को हर रोज़ साफ करता है, नफ़रत से, शिकायतों से, बेकार की उम्मीदों से, ताकि उसका दिल अपने रब के लिए एक पाक जगह बन सके। अब उसकी खामोशी भी गूंजती है, क्योंकि उस खामोशी में उसके रब का जिक्र होता है। अब वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके लफ्ज़ सुकून देते हैं, क्योंकि उसकी बातों में दुनिया नहीं, उसके रब की याद होती है। अब वो हर रिश्ते को भी एक अमानत समझता है। वो किसी से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, लेकिन हर किसी के लिए अपने दिल में जगह रखता है, क्योंकि उसे पता है कि हर इंसान उसके रब की एक रचना है। अब वो टूटे हुए रिश्तों पर रोता नहीं, बल्कि उनसे मिली सीख को अपने दिल में संभाल लेता है,
और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जो गया वो भी किसी भलाई के लिए गया। अब उसे तन्हाई से डर नहीं लगता, बल्कि वो तन्हाई में सुकून ढूंढता है, क्योंकि वहीं वो अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है। अब उसकी रातें सिर्फ नींद के लिए नहीं होती, बल्कि अपने रब से मिलने के लिए होती हैं। वो उठता है खामोशी में और अपने रब से बातें करता है, अपने दिल का हर हाल सुनाता है और फिर एक अजीब सा सुकून लेकर लौटता है। अब उसकी सुबहें सिर्फ शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक नई उम्मीद होती है, एक नया मौका अपने रब को राजी करने का। अब वो हर काम में नीयत को साफ रखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके रब के पास नतीजे से ज़्यादा नीयत की कीमत है। अब वो अपने हर कदम को सोच समझ कर रखता है, ताकि उसका कोई कदम उसे उसके रब से दूर ना कर दे। अब वो अपने रब से सिर्फ डरता नहीं, बल्कि उससे मोहब्बत भी करता है, और यही मोहब्बत उसे हर बुराई से दूर रखती है। अब उसे दुनिया की चमक दमक नहीं लुभाती, क्योंकि उसे असली सुकून मिल चुका होता है। और जब असली सुकून मिल जाए तो नकली चीज़ों की कोई कीमत नहीं रहती। अब वो अपने रब के फैसलों में सुकून ढूंढता है, चाहे वो फैसले उसके मन के खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब उससे ज़्यादा समझदार है और वही उसके लिए बेहतर चुनता है। अब वो हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि उसकी मुस्कान अब हालात पर नहीं, बल्कि उसके यकीन पर टिकी होती है। अब वो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसके लिए भी आसानियां पैदा करेगा। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद बदल चुका होता है। अब वो सिर्फ जीने के लिए नहीं जीता, बल्कि अपने रब को राजी करने के लिए जीता है, और यही मकसद उसकी हर सांस को मायने देता है। अब वो हर दिन को एक तोहफा समझता है और हर रात को एक मौका खुद को बेहतर बनाने का। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो किसी भी तूफान से हिल नहीं सकता, क्योंकि अब उसका सहारा कोई इंसान नहीं, बल्कि उसका रब होता है। और जब सहारा इतना मजबूत हो तो फिर गिरने का डर नहीं रहता। इसलिए अगर तुम भी इस रास्ते पर हो तो इसे मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि ये रास्ता तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहाँ सिर्फ सुकून है, जहाँ सिर्फ मोहब्बत है, और जहाँ तुम्हारा रब तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुँच जाए तो उसकी रूह खुद कहती है, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी मंजिल है, और तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यही एहसास उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल बना देता है, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी सफ़र में इतना पक्का हो जाता है कि उसका दिल हर हाल में अपने रब पर राजी रहने लगता है, तब उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक ऐसी नेमत बन जाता है जिसमें सुकून ही सुकून होता है, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी को नहीं, अपने रब की मर्जी को अहमियत देता है। अब अगर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो उदास नहीं होता, बल्कि दिल से कहता है, शायद इसमें मेरे लिए भलाई नहीं थी। और अगर उसे कुछ मिल जाए तो वो खुश तो होता है, लेकिन अपने रब को भूलता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि देने वाला वही है। अब वो अपने रब से सिर्फ नेमतों में नहीं, बल्कि हर हाल में जुड़ा रहता है, खुशियों में भी और गमों में भी। और यही जुड़ाव उसके दिल को हर वक्त सुकून में रखता है। अब उसे किसी चीज़ का घमंड नहीं होता, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जो कुछ उसके पास है वो सब उसके रब की देन है, और जो दे सकता है वो ले भी सकता है। इसलिए वो हर हाल में विनम्र रहता है। अब वो दूसरों को देखकर खुद को छोटा या बड़ा नहीं समझता, क्योंकि उसकी नज़र अब दुनिया पर नहीं, अपने रब पर होती है, और यही नज़र उसे हर तुलना से आज़ाद कर देती है। अब वो अपने दिल को हर रोज़ टटोलता है। उसमें अगर कोई बुराई दिखे तो उसे निकालने की कोशिश करता है, और अगर कोई अच्छाई दिखे तो उसे और बढ़ाने की कोशिश करता है।
अब वो हर छोटी बात में भी सब्र करता है, क्योंकि उसे पता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब वो हर इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करता है, चाहे सामने वाला उसके साथ कैसा भी हो, क्योंकि उसका व्यवहार अब उसके रब के लिए होता है, ना कि लोगों के लिए। अब वो किसी की बुराई नहीं करता, बल्कि हर किसी के लिए दुआ करता है, और यही दुआएं उसकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देती हैं। अब वो अपने रब से सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि हर हाल में उसका शुक्र अदा करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हर चीज़ उसके लिए बेहतर है। अब वो अपने गमों को दिल में दबाकर नहीं रखता, बल्कि उन्हें अपने रब के सामने रख देता है और फिर हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसे समझता है। अब वो अपनी तन्हाई से भी प्यार करने लगता है, क्योंकि वहीं उसे अपने रब का सबसे ज़्यादा करीब एहसास होता है। अब उसकी रातें सुकून भरी होती हैं, क्योंकि वो अपने रब के भरोसे सोता है, और उसकी सुबहें उम्मीद भरी होती हैं, क्योंकि वो अपने रब के भरोसे उठता है। अब वो हर दिन को एक नया मौका समझता है, अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने रब के और करीब जाने का, और यही सोच उसे हर दिन आगे बढ़ाती है। अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता, ना खोने का, ना टूटने का, ना अकेले रह जाने का, क्योंकि उसे यकीन हो चुका होता है कि उसका रब हर हाल में उसके साथ है। और जब ये यकीन दिल में उतर जाए तो इंसान कभी नहीं डरता। अब वो अपने रब के फैसलों में सुकून ढूंढता है, चाहे वो फैसले उसके मन के खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उससे ज़्यादा जानता है और वही उसके लिए बेहतर चुनता है। अब वो हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि उसकी मुस्कान अब हालात पर नहीं, उसके यकीन पर टिकी होती है। अब वो हर इंसान के लिए आसानियां पैदा करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसके लिए भी आसानियां पैदा करेगा। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद साफ हो चुका होता है, अपने रब को राजी करना, और यही मकसद उसे हर दिन सुकून देता है। और जब इंसान इस मकसद के साथ जीने लगे तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी सच्चाई को अपनी हर सांस में बसा लेता है, तब उसकी ज़िंदगी एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो खुद भी सुकून में रहती है और दूसरों को भी सुकून देती है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने हालात का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि अपने रब की रहमत का ज़रिया बन जाता है। अब उसकी मौजूदगी भी लोगों के लिए सुकून बन जाती है। वो जहाँ बैठता है वहाँ सुकून उतर आता है, वो जहाँ बोलता है वहाँ दिलों को राहत मिलती है, क्योंकि उसके अंदर अब दुनिया नहीं, उसके रब की याद बसती है। अब वो अपने दर्द को छुपाता नहीं, लेकिन उसे अपनी पहचान भी नहीं बनाता, बल्कि उसे अपने रब के हवाले कर देता है और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हर दर्द के पीछे कोई ना कोई रहमत छुपी है। अब वो हर इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। अब वो अपने लफ्ज़ों का ख़ास ख्याल रखता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि एक लफ्ज़ किसी का दिल जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। इसलिए वो हमेशा ऐसे लफ्ज़ चुनता है जो दिलों को सुकून दे। अब वो अपने रब से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए दुआ करता है जो टूटा हुआ है, हर उस इंसान के लिए राहत मांगता है जो मुश्किल में है, और यही दुआएं उसकी ज़िंदगी को और भी रोशन बना देती हैं। अब वो अपने रब के फ़ैसलों में राजी रहता है, चाहे वो फ़ैसले उसके मन के खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब उससे ज़्यादा समझदार है और वही उसके लिए बेहतर चुनता है। अब वो हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि उसकी मुस्कान अब हालात पर नहीं, बल्कि उसके यकीन पर टिकी होती है। अब वो अपने अतीत को याद करके दुखी नहीं होता, बल्कि
हर बीती हुई बात से कुछ सीख लेता है और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने में लग जाता है। अब उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर होता है और यही भरोसा उसे हर डर से आज़ाद कर देता है। अब उसे अकेलापन डराता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका रब हमेशा उसके साथ है। और जब ये एहसास दिल में उतर जाए तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीता है और हर रात को एक सुकून भरी पनाह की तरह। अब वो अपने रब से हर वक्त जुड़ा रहता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि यही रिश्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वो किसी चीज़ के पीछे भागता नहीं, क्योंकि उसे सब कुछ मिल चुका होता है, उसका रब, उसका सुकून, उसकी खुशी। और जब इंसान को ये सब मिल जाए तो फिर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए अगर तुम भी इस रास्ते पर हो तो चलते रहो, क्योंकि ये रास्ता तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ सिर्फ सुकून है, जहाँ सिर्फ मोहब्बत है और जहाँ तुम्हारा रब तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुँच जाए तो उसकी रूह खुद कहती है, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी मंजिल है, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यही एहसास उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल बना देता है, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी सच्चाई में इतना स्थिर हो जाता है कि उसका दिल हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे, तब उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक ऐसी बरकत बन जाता है जिसमें कमी होकर भी कमी नहीं रहती। क्योंकि अब वो पाने में खुश नहीं होता, बल्कि दिए जाने पर शुक्रगुजार होता है। अब अगर उसके पास कम हो तो वो परेशान नहीं होता, बल्कि दिल से कहता है, शायद इतना ही मेरे लिए बेहतर है। और अगर उसके पास ज़्यादा हो तो वो घमंड नहीं करता, बल्कि और ज़्यादा झुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही। अब उसकी निगाहें बदल जाती हैं, वो कमी में भी रहमत देखता है और मुश्किल में भी आसानी, क्योंकि उसका दिल अब अपने रब की हिकमत को समझने लगा होता है। अब वो हर उस चीज़ को छोड़ देता है जो उसके दिल को भारी करती है, शिकायतें, गिले शिकवे, बेकार की उम्मीदें, और उनकी जगह वो अपने दिल में सब्र, शुक्र और यकीन भर लेता है। अब उसका दिल हल्का हो जाता है और हल्का दिल हमेशा सुकून में रहता है। अब वो किसी से मुकाबला नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि हर किसी की राह अलग है, हर किसी की कहानी अलग है और उसका रब हर किसी को उसके हिसाब से देता है। अब वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों से नहीं, बल्कि अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है और यही सोच उसे हर दिन आगे बढ़ाती है। अब वो हर हाल में सुकून में रहता है, क्योंकि उसका सुकून अब हालात पर नहीं, बल्कि उसके रब पर टिका होता है। और जब सुकून का सहारा इतना मजबूत हो तो फिर कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब वो अपने रब से सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि हर हाल में उसका शुक्र अदा करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हर चीज़ उसके लिए बेहतर है। अब वो अपने गमों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने रब के हवाले कर देता है और फिर बेखौफ होकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसकी हर परेशानी को आसान कर देगा। अब उसे अकेलापन डराता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका रब हर पल उसके साथ है। और जब ये एहसास दिल में उतर जाए तो इंसान कभी अकेला नहीं रहता। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत समझता है और हर रात को एक सुकून भरी पनाह। अब वो अपने हर लम्हे को जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक नेमत है और वो इस नेमत को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ न कोई डर होता है, न कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुँच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर
कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस सुकून को अपनी आदत बना लेता है, तब उसकी ज़िंदगी सिर्फ बदलती नहीं बल्कि निखर जाती है। जैसे बारिश के बाद धरती महकने लगती है, क्योंकि अब वो हर चीज़ को उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से उसका रब उसे देखना चाहता है। अब वो अपने दिल को हर रोज़ साफ करता है, गिले शिकवे मिटाकर, नफ़रतें निकालकर और बेवजह की उम्मीदें छोड़कर, ताकि उसका दिल हल्का रहे और उसमें सिर्फ सुकून बस सके। अब वो समझ चुका होता है कि दिल जितना भरा होगा उतना ही बेचैन रहेगा, और दिल जितना खाली होगा उतना ही सुकून में रहेगा। इसलिए वो अपने दिल को दुनिया से खाली करता है और अपने रब से भर देता है। अब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें बस नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर होता है, और यही समझ उसे अंदर से मजबूत बनाती है। अब वो हर उस चीज़ को छोड़ देता है जो उसे उसके रब से दूर करती है, और हर उस चीज़ को पकड़ लेता है जो उसे उसके रब के करीब लाती है। अब उसकी ज़िंदगी में एक संतुलन आ जाता है। न वो दुनिया को पूरी तरह छोड़ता है, न उसमें पूरी तरह खोता है, बल्कि दोनों के बीच एक खूबसूरत रास्ता चुनता है, जहाँ वो अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाता है और अपने रब से जुड़ाव भी बनाए रखता है। अब वो हर काम में नीयत को साफ रखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके रब के पास नीयत की बहुत कीमत है। अब वो दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। अब वो हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि उसकी मुस्कान अब हालात पर नहीं, उसके यकीन पर टिकी होती है। अब वो अपने अतीत से सुकून में होता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जो बीत गया वो भी उसके लिए ज़रूरी था, और जो आने वाला है वो भी उसके लिए बेहतर होगा। अब उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर होता है, और यही भरोसा उसे हर डर से आज़ाद कर देता है। अब उसे अकेलापन डराता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका रब हर पल उसके साथ है। और जब ये एहसास दिल में उतर जाए तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीता है, और हर रात को एक सुकून भरी पनाह की तरह। अब वो अपने हर लम्हे को जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक तोहफ़ा है, और वो इस तोहफ़े को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ न कोई डर होता है, न कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुँच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस सुकून को सिर्फ महसूस नहीं बल्कि जीने लगता है, तब उसकी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी दुआ बन जाती है जो बिना अल्फाज के भी कबूल होने लगती है, क्योंकि अब वो अपने रब को सिर्फ पुकारता नहीं बल्कि हर पल उसे अपने साथ महसूस करता है। अब उसकी तन्हाई भी खाली नहीं रहती, बल्कि उसमें एक गहरी मौजूदगी होती है, एक ऐसा एहसास जो उसे कभी टूटने नहीं देता। अब अगर वो कहीं बैठा हो खामोश, तो भी उसका दिल बातें कर रहा होता है अपने रब से, बिना आवाज़ के, बिना किसी जाहिर इशारे के। और यही खामोशी उसके दिल की सबसे सच्ची इबादत बन जाती है। अब उसे ये समझ आ जाता है कि हर बार बोलना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सबसे गहरी दुआ होती है। अब वो अपने गमों को लेकर परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि हर गम के पीछे एक छुपी हुई रहमत होती है, और हर रहमत उसे उसके रब के और करीब ले जाती है। अब वो हर उस चीज़ को छोड़ देता है जो उसे बेचैन करती है, और हर उस चीज़ को अपनाता है जो उसे सुकून देती है। अब उसकी दुनिया छोटी नहीं बल्कि बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि उसका दिल अब सिर्फ बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि अंदर की सच्चाई से जुड़ा होता है।
अब वो खुद से भी सच्चा हो जाता है। अपने डर, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी गलतियाँ सब कुछ मान लेता है और फिर उन्हें अपने रब के हवाले कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वो है। अब उसे किसी के सामने अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका रब उसके दिल की हर सच्चाई जानता है। अब उसकी नीयत साफ हो जाती है और साफ नीयत हर काम को खूबसूरत बना देती है। अब वो हर दिन को एक अमानत समझता है और हर रात को एक मौका खुद को बेहतर बनाने का। अब वो अपने रब से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए दुआ करता है जो दर्द में है, हर उस इंसान के लिए सुकून मांगता है जो बेचैन है। और यही दुआएं उसकी रूह को और भी पाक बना देती हैं। अब वो अपने अतीत को याद करके दुखी नहीं होता, बल्कि हर बीती हुई बात में एक सीख ढूंढता है और उस सीख को अपने आज में लागू करता है ताकि उसका कल बेहतर हो सके। अब उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर होता है और यही भरोसा उसे हर डर से आज़ाद कर देता है। अब उसे खोने का डर नहीं, टूटने का डर नहीं, अकेले होने का डर नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका रब हर हाल में उसके साथ है। और जब इंसान को ये यकीन हो जाए तो फिर उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहता। अब वो हर लम्हे को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक नेमत है और वो इस नेमत को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ न कोई डर होता है, न कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुँच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस एहसास को अपनी रूह की गहराइयों में इतना बसा लेता है कि उसका हर ख्याल अपने रब की तरफ मुड़ जाता है, तब उसकी ज़िंदगी एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो कभी बुझती नहीं, क्योंकि अब वो अंधेरों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है। अब अगर उसकी ज़िंदगी में कोई अंधेरा आए तो वो घबराता नहीं, बल्कि अपने दिल से कहता है, शायद इस अंधेरे में भी कोई रोशनी छुपी है। और सच में वो रोशनी उसे मिल भी जाती है, क्योंकि जिसका भरोसा अपने रब पर हो उसके लिए अंधेरा भी रास्ता बन जाता है। अब वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपने रब के सामने रख देता है और फिर एक सुकून के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसके हर दर्द को समझता है। अब वो अपने दिल को हर रोज़ साफ करता है, गुस्से से, नफ़रत से और बेवजह की उम्मीदों से, ताकि उसका दिल हल्का रहे और उसमें सिर्फ सुकून बस सके। अब उसे ये समझ आ जाता है कि दिल का सुकून किसी चीज़ को पाने में नहीं, बल्कि अपने रब को पाने में है। और जब इंसान को ये सुकून मिल जाए तो फिर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। अब वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हर चीज़ उसके लिए बेहतर है। अब वो अपने रब के फैसलों में सुकून ढूंढता है, चाहे वो फैसले उसके मन के खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उससे ज़्यादा जानता है और वही उसके लिए बेहतर चुनता है। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत समझता है और हर रात को एक सुकून भरी पनाह। अब वो अपने हर लम्हे को जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक नेमत है और वो इस नेमत को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसीलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ ना कोई डर होता है, ना कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि
जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी सुकून को अपनी आदत नहीं बल्कि अपनी पहचान बना लेता है, तब उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक ऐसी रोशनी बन जाता है जो सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके आसपास हर दिल को सुकून देने लगती है। क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि हर उस दिल के लिए जीता है जो थका हुआ है। अब उसकी मौजूदगी ही राहत बन जाती है। वो कुछ खास करता नहीं, फिर भी लोग उसके पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि उसके दिल में अब शोर नहीं, सिर्फ सुकून होता है। और सुकून हमेशा फैलता है। अब वो हर हाल में अपने रब को याद करता है, खुशी में भी और गम में भी। और यही लगातार याद उसके दिल को कभी खाली नहीं होने देती। अब उसे समझ आ जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमी रब से दूरी है और सबसे बड़ी दौलत रब की नज़दीकी। अब वो अपने दिल को हर रोज़ संभालता है, उसे टूटने नहीं देता, उसे भारी नहीं होने देता, क्योंकि उसे पता है कि दिल ही वो जगह है जहाँ उसका रब बसता है। इसलिए वो अपने दिल को साफ रखता है, नफरत से, गुस्से से और बेवजह की बातों से, ताकि उसमें सिर्फ मोहब्बत और सुकून रहे। अब वो अपने हर काम में नीयत को साफ रखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके रब के पास नीयत की बहुत कीमत है। अब वो किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, लेकिन हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, क्योंकि उसका दिल अब बड़ा हो चुका होता है। अब वो हर उस चीज़ को छोड़ देता है जो उसे बेचैन करती है, और हर उस चीज़ को पकड़ लेता है जो उसे सुकून देती है। अब उसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका रब हर पल उसके साथ है। और जब ये एहसास दिल में उतर जाए तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता। अब वो हर दिन को एक मौका समझता है अपने दिल को और बेहतर बनाने का, अपने रब के और करीब जाने का। और हर रात को एक आईना समझता है जिसमें वो अपने पूरे दिन को देखता है और खुद से पूछता है, क्या आज मेरा दिल साफ था? और यही सवाल उसे हर दिन बेहतर बनाता है। अब वो अपने गमों को दिल में दबाकर नहीं रखता, बल्कि उन्हें अपने रब के हवाले कर देता है, और फिर हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसे समझता है। अब वो हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि उसकी मुस्कान अब हालात पर नहीं, उसके यकीन पर टिकी होती है। अब वो अपने अतीत से सुकून में होता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जो बीत गया वो भी उसके लिए ज़रूरी था, और जो आने वाला है वो भी उसके लिए बेहतर होगा। अब उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर होता है, और यही भरोसा उसे हर डर से आज़ाद कर देता है। अब वो हर लम्हे को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक नेमत है, और वो इस नेमत को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ न कोई डर होता है, न कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुँच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी सुकून को अपनी पहचान से भी आगे बढ़ाकर अपनी फितरत बना लेता है, तब उसकी ज़िंदगी एक ऐसी खुशबू बन जाती है जो हर दिल तक पहुंचती है, क्योंकि अब वो सिर्फ खुद को संभालने में नहीं लगा होता, बल्कि दूसरों के दिलों को भी सुकून देने लगता है। अब उसकी बातें कम लेकिन असरदार होती हैं। वो ज़्यादा समझता है
कम बोलता है, क्योंकि उसने खामोशी की भाषा सीख ली होती है। अब अगर कोई उसके पास अपने दर्द लेकर आए तो वो सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि अपने सुकून का हिस्सा उसे दे देता है, क्योंकि जिसने खुद सुकून पाया हो वही सुकून बांट सकता है। अब वो हर इंसान में अच्छाई ढूंढता है, क्योंकि उसकी नज़र अब कमियों पर नहीं बल्कि नेमतों पर होती है। अब वो अपने रब के फैसलों से पूरी तरह राज़ी रहता है, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब कभी गलत नहीं करता। अब उसकी ज़िंदगी में शिकायत की जगह नहीं होती, सिर्फ शुक्र और सब्र, और यही दो चीज़ें उसकी रूह को मजबूत बनाए रखती हैं। अब वो अपने हर दिन को एक इबादत की तरह जीता है। हर काम, हर बात, हर इरादा, सब कुछ अपने रब की खुशी के लिए। अब उसे किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसे देख रहा है और वही सबसे बड़ा गवाह है। अब वो अपने गमों को बोझ नहीं समझता, बल्कि उन्हें अपने रब के करीब आने का ज़रिया समझता है। अब उसे हर मुश्किल में भी सुकून मिलता है, क्योंकि वो जानता है कि हर मुश्किल उसके लिए कुछ बेहतर लेकर आई है। अब वो अपने रब से सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि हर हाल में उसका शुक्र अदा करता है, चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जो मिला वो भी बेहतर और जो नहीं मिला वो भी बेहतर। अब वो अपने अतीत को याद करके परेशान नहीं होता, बल्कि हर बीती हुई बात से सीख लेता है और उस सीख को अपनी ज़िंदगी में उतारता है। अब उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर होता है, और यही भरोसा उसे हर डर से आज़ाद कर देता है। अब वो हर लम्हे को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक नेमत है, और वो इस नेमत को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ न कोई डर होता है, न कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुँच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी सुकून को अपने अंदर इतना गहरा उतार लेता है कि उसकी हर सोच, हर नज़र और हर एहसास अपने रब की तरफ झुक जाता है, तब उसकी ज़िंदगी एक ऐसी इबादत बन जाती है जो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब वो हर लम्हे में अपने रब को याद करता है, सिर्फ सजदे में नहीं बल्कि हर हाल में। अब उसकी सांसें भी जिक्र बन जाती हैं, उसकी खामोशी भी दुआ बन जाती है, क्योंकि उसका दिल अब हर वक्त अपने रब से जुड़ा होता है। अब उसे किसी ख़ास वक्त या जगह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हर जगह, हर वक्त अपने रब को महसूस करता है। हवा के हर झोंके में, बारिश की हर बूंद में, रात की हर खामोशी में उसे अपने रब की रहमत नज़र आती है। अब वो हर चीज़ को गहराई से देखने लगता है, सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से। और जब दिल से देखा जाए तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। अब वो किसी से नफ़रत नहीं करता, क्योंकि उसका दिल अब मोहब्बत से भर चुका होता है। अब वो हर इंसान के लिए अच्छा सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि हर इंसान अपने अपने इम्तिहान से गुज़र रहा है। अब वो किसी को जज नहीं करता, बल्कि हर किसी के लिए दुआ करता है, और यही दुआएं उसकी रूह को और भी पाक बना देती हैं। अब वो अपने गमों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने रब के हवाले कर देता है, और फिर सुकून के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसके हर दर्द को समझता है। अब वो अपने अतीत से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जो कुछ हुआ वो उसके लिए ज़रूरी था, और जो कुछ होगा वो भी उसके लिए बेहतर होगा। अब उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर होता है, और यही भरोसा उसे हर डर से आज़ाद कर देता है। अब वो हर लम्हे को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक नेमत है, और वो इस नेमत को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है,
कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ ना कोई डर होता है, ना कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुँच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी सफ़र में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे हर चीज़ में अपने रब की मौजूदगी महसूस होने लगे, तब उसकी ज़िंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं रहती, बल्कि हर लम्हा एक जिंदा एहसास बन जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से देखने लगता है। अब अगर हवा चलती है तो उसे उसमें रहमत महसूस होती है, अगर बारिश होती है तो उसे उसमें दुआएं नज़र आती हैं, अगर धूप निकलती है तो उसे उसमें उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि उसका दिल अब हर चीज़ को अपने रब से जोड़कर देखने लगा होता है। अब वो हर हाल में शुक्र अदा करता है, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हर चीज़ उसके लिए बेहतर है। अब वो अपने रब से सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि हर हाल में उसका शुक्र करता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जो मिला है वो भी रहमत है और जो नहीं मिला वो भी रहमत है। अब उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें सबके लिए जगह होती है, ना कोई नफ़रत, ना कोई जलन, बस एक सच्ची मोहब्बत। अब वो हर इंसान के लिए आसानियाँ चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। अब वो अपने गमों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने रब के हवाले कर देता है और फिर सुकून के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब उसे संभाल लेगा। अब उसे अकेलापन डराता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका रब हर पल उसके साथ है। और जब ये एहसास दिल में उतर जाए तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत समझता है और हर रात को एक सुकून भरी पनाह। अब वो अपने हर लम्हे को जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक नेमत है और वो इस नेमत को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ न कोई डर होता है, न कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुँच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी सुकून को अपनी ज़िंदगी का हासिल नहीं, बल्कि अपना रास्ता बना लेता है, तब हर दिन एक नई तलाश नहीं, बल्कि एक गहरी पहचान बन जाता है, क्योंकि अब वो अपने रब को पाने के लिए भटकता नहीं, बल्कि हर लम्हे में उसे महसूस करता है। अब उसे दूरियों का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका रब उससे दूर नहीं, बल्कि उसके दिल के सबसे करीब है। अब उसकी सोच में गहराई आ जाती है, वो हर बात को सतह पर नहीं, बल्कि उसकी गहराई में जाकर समझता है, क्योंकि उसका दिल अब सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने रब की हिकमत से जुड़ा होता है। अब वो हर फैसले में जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि सब्र के साथ इंतज़ार करता है, क्योंकि उसे पता है कि सही वक्त पर ही सही चीज़ मिलती है। अब वो हर उस चीज़ को छोड़ देता है जो उसके दिल को भारी करती है, और हर उस चीज़ को अपनाता है जो उसे हल्का और सुकून भरा बनाती है। अब उसका दिल शिकायतों से खाली हो जाता है, उसमें सिर्फ शुक्र और यकीन रह जाता है। और यही दो चीज़ें उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती हैं। अब वो अपने रब से सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि हर हाल में जुड़ा रहता है, खुशियों में भी और गमों में भी, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि असली रिश्ता वही है जो हर हाल में बना रहे। अब वो अपने दिल को हर रोज़ आईना दिखाता है, उसमें अगर कोई कमी दिखे तो उसे सुधारने की कोशिश करता है, और अगर कोई अच्छाई दिखे तो उसे और मजबूत बनाता है। अब वो हर इंसान के लिए अच्छा सोचता है, क्योंकि उसका दिल अब बड़ा हो चुका होता है, उसमें किसी के लिए जगह कम नहीं पड़ती,
अब वो अपने गमों को बोझ नहीं बनाता, बल्कि उन्हें अपने रब के हवाले कर देता है और फिर हल्का होकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब उसे संभाल लेगा। अब उसे अकेलापन डराता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। उसका रब हर पल उसके साथ था, बस वो खुद ही उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। और जब ये एहसास दिल में उतर जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब वो हर लम्हे को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक नेमत है और वो इस नेमत को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ न कोई डर होता है, न कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुँच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी एहसास को अपनी रग रग में उतार लेता है, तब उसकी ज़िंदगी सिर्फ सुकून तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो खुद सुकून का ज़रिया बन जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने दर्द को समझने वाला नहीं रहता, बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ अपने ख्वाब नहीं, बल्कि दूसरों के लिए दुआएं भी होती हैं। वो जब हाथ उठाता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए मांगता है जो थका हुआ है, जो टूटा हुआ है। और यही दुआएं उसके दिल को और भी नरम बना देती हैं। अब वो हर रिश्ते को बहुत संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि रिश्ते भी नेमत होते हैं। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि उसका दिल अब दर्द की कीमत समझ चुका होता है। अब वो अपने लफ्ज़ों को भी तौलकर बोलता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि एक गलत लफ्ज़ किसी का दिल तोड़ सकता है और एक सही लफ्ज़ किसी का दिल जोड़ सकता है। अब वो हर हाल में अपने रब को याद करता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वही उसकी हर परेशानी का हल है। अब वो अपने गमों को दिल में दबाकर नहीं रखता, बल्कि उन्हें अपने रब के सामने रख देता है और फिर सुकून के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब उसे संभाल लेगा। अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता, न खोने का, न टूटने का, न अकेले रहने का, क्योंकि उसे यकीन हो चुका होता है कि उसका रब हर हाल में उसके साथ है। और जब ये यकीन दिल में उतर जाए तो इंसान हर डर से आज़ाद हो जाता है। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत समझता है और हर रात को एक सुकून भरी पनाह। अब वो अपने हर लम्हे को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लम्हा उसके रब की तरफ से एक नेमत है और वो इस नेमत को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर लम्हे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, लेकिन हर बार अपने रब की खुशी के लिए। और यही सोच उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ न कोई डर होता है, न कोई पछतावा, बस एक सुकून, एक यकीन, एक गहरी खुशी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाए तो उसकी रूह को वो सुकून मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिसे उसका रब मिल जाए उसे फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब इंसान इस रूहानी एहसास को अपनी हर धड़कन में बसा लेता है, तब उसकी ज़िंदगी सिर्फ सुकून की तलाश नहीं रहती, बल्कि हर लम्हा खुद एक मुकम्मल सुकून बन जाता है, क्योंकि अब वो बाहर नहीं ढूंढता जो उसे अंदर मिल चुका होता है। अब उसकी निगाहें बदल जाती हैं। वो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था, बल्कि हर चीज़ में एक गहराई, एक मतलब, एक रहमत देखता है। अब अगर कोई उसे तकलीफ़ दे तो वो तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि थोड़ा ठहरता है और सोचता है शायद इसमें भी कोई सीख है, और यही ठहराव उसे गुस्से से बचा लेता है। अब वो अपने दिल को हर रोज़ साफ करता है, गिले शिकवे मिटाकर, नफ़रतें निकालकर और बेकार की उम्मीदें छोड़कर, ताकि उसका दिल हल्का रहे और उसमें सिर्फ सुकून बस सके। अब उसे समझ आ जाता है कि दिल का सुकून
किसी चीज़ को पाने में नहीं बल्कि अपने रब को पाने में है। और जब ये सुकून मिल जाए तो फिर बाकी सब छोटा लगने लगता है। अब वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हर चीज़ उसके लिए बेहतर है। अब वो अपने रब के फैसलों से नाराज़ नहीं होता बल्कि हर फैसले को दिल से कबूल करता है, और यही कबूलियत उसके दिल को सुकून देती है। अब वो अपने गमों को बोझ नहीं बनाता बल्कि उन्हें अपने रब के हवाले कर देता है और फिर हल्का होकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसे संभाल लेगा। अब उसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका रब हर पल उसके साथ है। और जब ये एहसास दिल में उतर जाए तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत समझता है और हर रात को एक सुकून भरी पनाह। अब वो अपने हर लम्हे को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है